آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں جو شاید کچھ لوگوں کو پرانی لگے، لیکن جس نے بر صغیر کی تاریخ، سیاست اور ثقافت پر اتنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں کہ آج بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ہم ریڈیو کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایزابیل ہواکوجا الونسو کی کتاب ریڈیو فار دا ملینز کے کچھ اقتباسات ہیں، اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ ریڈیو صرف گانے سننے یا خبریں جاننے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح کا میدان جنگ تھا جہاں سلطنتیں، نئی قومیں اور عام لوگ اپنی اپنی کہانیاں سنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، اور اس کتاب کا سب سے دلچسپ نقطہ یہی ہے کہ یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ 1947 کی تقسیم نے ہندوستان اور پاکستان کو ثقافتی طور پر ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، مطلب نقشے پر لکیریں تو کھینچ دی گئی، لیکن ریڈیو کی لہریں ان لکیروں کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ سرحدوں کے آر پار جاتی رہیں اور لوگوں کو جوڑے رکھا، چاہے حکومتیں اس کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں۔ آج ہم اسی کہانی کے 3 اہم موڑ دیکھیں گے: دوسری جنگ عظیم، آزادی کے بعد کی پہلی دہائی اور 1965 کی پاک بھارت جنگ۔ چلیں پھر دوسری جنگ عظیم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ہی حیران کن بات لکھی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ریڈیو سیٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، مطلب گنتی کے چند ہزار سیٹ پورے بر صغیر میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود انگریز حکام کو جرمنی اور جاپان کے ریڈیو براڈ کاسٹس کی بہت زیادہ فکر تھی۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ جب سننے والے ہی نہیں تو فکر کیسی؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے بنیادی اور دلچسپ تصور ہے۔ اسے مصنفہ نے ریڈیو ریزوننس کا نام دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیو کا اثر صرف ان لوگوں تک محدود نہیں تھا جن کے پاس ریڈیو سیٹ تھے۔ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے کسی تالاب میں ایک پتھر پھینکا جائے، لہریں صرف وہی نہیں رکتیں جہاں پتھر گرا، بلکہ کنارے تک پھیلتی ہیں۔ ریڈیو کی خبر وہ ایک پتھر تھی اور افواہیں وہ لہریں تھیں جو پورے معاشرے میں پھیل گئیں۔ ایک شخص ریڈیو پر کچھ سنتا، پھر چائے خانے پر 10 لوگوں کو بتاتا، وہ 10 لوگ آگے 100 لوگوں تک بات پہنچاتے۔ اس دور میں بات کرنا بھی سننے کے مترادف تھا اور انگریزوں اس گونج سے ڈرتے تھے۔ اچھا، تو ایسی کیا خاص بات نشر ہو رہی تھی جرمنی اور جاپان کے ریڈیو سے جس سے انگریزوں کی نیندیں آپ کہہ لیں کہ حرام ہو گئی تھیں؟ وہ بہت ہوشیاری سے کام کر رہے تھے۔ ان کے نشریات صاف اور رواں ہندوستانی زبان میں ہوتی تھیں۔ ان میں کھل کر انگریز سامراج کے خلاف باتیں کی جاتیں، ہندوستانیوں کو آزادی کے لیے اکسایا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ فاشسٹ اور یہود مخالف پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا۔ وہ سننے والوں کو یہ احساس دلاتے تھے کہ اندھیرے میں چھپ کر دشمن کا ریڈیو سننا بھی اپنے آپ میں سامراج کے خلاف ایک انقلابی قدم ہے۔ گویا آپ ایک خفیہ انقلابی برادری کا حصہ ہیں۔ بالکل، جو صرف آواز کی لہروں سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے۔ آپ کے پاس ریڈیو سیٹ نہیں، لیکن دشمن کا پروپیگنڈا افواہوں کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ تو ایسے میں برٹش حکومت کے پاس کیا آپشنز تھے؟ انہوں نے دوسرا راستہ چنا۔ اسی دباؤ میں آ کر انہوں نے پہلی بار آل انڈیا ریڈیو یعنی AIR میں سنجیدگی سے پیسہ لگانا شروع کیا۔ اسے ایک طاقتور پروپیگنڈا مشین بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، ایک نیا محاذ کھل گیا۔ اس وقت AIR کی قیادت ذہین بخاری برادران یعنی پطرس بخاری اور ذوالفقار علی بخاری کے ہاتھ میں تھی۔ ان پر فوراً یہ الزام لگنے لگا کہ وہ ادارے کو مسلمان کر رہے ہیں اور اردو کو غیر ضروری طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف بین الاقوامی پروپیگنڈا جنگ اور دوسری طرف گھر کے اندر زبان کی سیاست شروع ہو گئی۔ جی بالکل۔ اس کا حل یہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ چلو ایک ایسی زبان بناتے ہیں جو نہ ہندی لگے نہ اردو، ایک ہندوستانی زبان۔ لیکن یہ بات بن نہیں سکی، کیونکہ اس وقت تک زبان کا مسئلہ بھی سیاست کی نظر ہو چکا تھا اور کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اس پوری ریڈیو جنگ میں سبھاش چندر بوس کہاں تھے؟ ان کا آزاد ہند ریڈیو تو ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبھاش چندر بوس واحد بڑے نوآبادیاتی مخالف رہنما تھے جنہوں نے ریڈیو کی طاقت کو صحیح معنوں میں سمجھا اور استعمال کیا۔ انہوں نے پہلے جرمنی اور پھر سنگاپور سے آزاد ہند ریڈیو کی نشریات شروع کی،
किताब ये दलील देती है कि भले ही उनकी फौजी मुहिमात उतनी कामयाब न रही हों, लेकिन एक रेडियो ब्रॉडकास्टर के तौर पर उनका असर बहुत ज्यादा और देर पा था। वो अपने सामीन को सिर्फ खबरें नहीं देते थे, वो उन्हें एक नया नजरिया दे रहे थे, सुनने के जरिए मुजाहिमत का नजरिया। सुनने के जरिए मुजाहिमत, इसका क्या मतलब है? उनका पैगाम बहुत दिलचस्प था। वो कहते थे कि सिर्फ मेरा रेडियो मत सुनो, दुश्मन के रेडियो यानी बीबीसी और ऑल इंडिया रेडियो को भी सुनो, लेकिन उन्हें एक नक्काद की तरह सुनो, उनके झूठ को पहचानो, उनकी चालों को समझो। ये सुनने का अमल ही मुजाहिमत बन जाएगा। लेकिन किताब यहाँ एक बहुत अहम तनकीदी नुक्ता भी उठाती है। वो कहती है कि आज़ादी के बाद हमने बोस का जो एक हीरो का इमेज बनाया है, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि उनका रेडियो इन फाशिस्ट हुकूमतों यानी नाजी जर्मनी और जापान के तावन से चल रहा था। तो बोस के रेडियो किरदार को इस हकीकत से अलग नहीं किया जा सकता। तो अंग्रेजों ने तो अपने मकासद के लिए ऑल इंडिया रेडियो को एक बड़ा इदारा बना दिया, लेकिन जब वही अंग्रेज चले गए तो उस ताकतवर आले का क्या हुआ? आजाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसे कैसे इस्तेमाल किया? ये कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पहले वजीर इत्तलात बने बीवी केसकर। वो एक बहुत ही सख्तगीर और क्लासिकी म्यूजिक के शौकीन थे। उन्होंने फैसला किया कि वो ऑल इंडिया रेडियो के जरिए नए हिंदुस्तान के सौती मेयारात कायम करेंगे। उनका मानना था कि अवाम का, खास तौर पर नौजवानों का, म्यूजिक का ज़ौक फिल्मी गानों की वजह से बहुत खराब हो चुका है। और फिल्मी गानों से उन्हें क्या मसला था? वो फिल्मी गानों को मगरबी डांस की बेहंगम धुनों का मलगूबा कहते थे। उनके ख्याल में ये मौसीकी ना हिंदुस्तानी थी और ना इसमें कोई गहराई थी। वो एक ऐसी नस्ल तैयार करना चाहते थे जिसे वो शहरी सामेईन यानी सिटीजन लिसनर्स कहते थे। ऐसे लोग जो आला क्लासिकी म्यूजिक को समझें और उसकी कदर करें। इस मकसद के लिए उन्होंने 1952 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या? उन्होंने गानों पर पाबंदी लगा दी? जी, तकरीबन ऐसा ही हुआ। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी फिल्मी गानों की नशरियात तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी और उनकी जगह क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम शुरू कर दिए। लेकिन इस पॉलिसी के कुछ ऐसे नताइज निकले जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। उनकी पॉलिसियों पर मुस्लिम मुखालिफ और ज़ात पात पर बनी होने के इल्ज़ामात लगे। मिसाल के तौर पर क्लासिकी मौसीकी के फ़रोग़ ने उन मुस्लिम म्यूजिशियनों को शदीद नुकसान पहुंचाया जो ज़्यादातर उस्ताद शागिर्दी की रवायत से तरबियत याफ्ता थे और AIR के नए ऑडिशन सिस्टम पर पूरे नहीं उतरते थे। अच्छा। इसी तरह हिंदी खबरों की जबान इतनी ज्यादा संस्कृत ज़दा कर दी गई कि वो आम आदमी की समझ से ही बाहर हो गई। यानी हुकूमत ने एक दरवाजा बंद किया तो अवाम ने दूसरी खिड़की खोल ली, और वो खिड़की श्रीलंका में थी। ये तो एक तरह से सकाफती बगावत थी। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन मिसाल है कि अवाम की पसंद को दबाया नहीं जा सकता। जैसे ही AIR ने फिल्मी गानों पर पाबंदी लगाई, एक खला पैदा हो गया और उस खला को पुर किया रेडियो सिलोन ने। रेडियो सिलोन की कहानी खुद बहुत दिलचस्प है। ये स्टेशन दरअसल दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेजों ने अपने फौजियों के लिए एक ट्रांसमीटर से शुरू किया था। जंग के बाद ये कमर्शियल हो गया और उन्होंने भांप लिया कि हिंदुस्तान में फिल्मी गानों की कितनी प्यास है। ये तो कमाल की बात है। यानी दिल्ली में बैठा एक वजीर म्यूजिक पर पाबंदी लगा रहा है और उसका फायदा कोलंबो में बैठा एक रेडियो स्टेशन उठा रहा है। किताब बताती है कि उन्होंने सिर्फ गाने नहीं चलाए बल्कि एक पूरा कल्चर बना दिया। जी, उन्होंने सिर्फ गाने नहीं चलाए, उन्होंने गानों को एक नया मतलब दिया। उन्होंने सामीन की शिरकत की हौसला अफजाई की, गानों की फरमाइश के प्रोग्राम शुरू किए, जैसे अमीन सयानी का मशहूर जमाना बना का गीत माला। इन प्रोग्रामों ने गानों को फिल्मों के स्याह को सबाक से निकालकर उनकी अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। पहली बार प्लेबैक सिंगर्स जैसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी फिल्म के अदाकारों से भी बड़े स्टार बन गए। और सबसे अहम बात, उन्होंने एक ऐसी आम फहम सादा हिंदुस्तानी ज़बान इस्तेमाल की जो सरहद के दोनों तरफ समझी जाती थी। यूं उन्होंने एक ऐसी सौती फिल्मी सकाफत को जन्म दिया जो रियासती सरहदों को बिल्कुल नहीं मानती थी। तो एक तरफ रेडियो सलून लोगों को फिल्मी गानों के जरिए जोड़ रहा था, और फिर 1965 में जंग हो जाती है। किताब कहती है कि इस जंग में रेडियो ने एक फौजी झड़प को एक बड़े सकाफती वाक़े में बदल दिया। ये कैसे हुआ?
1965 की जंग सिर्फ 17 दिन चली, लेकिन इन 17 दिनों में रेडियो पाकिस्तान ने एक ऐसी शदीद, जज्बाती और जारहाना नशरियाती मुहिम चलाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मुहिम ने लोगों में, खास तौर पर मगरबी पाकिस्तान में, ज़बरदस्त कौमी जोशो खरोश पैदा कर दिया। इस मुहिम की रूह और सबसे बड़ी स्टार थी मलकाए तरन्नुम नूरजहां। नूरजहां को पहले ही बहुत बड़ी स्टार थी, उनके जंगी नगमों में ऐसी क्या खास बात थी? किताब में एक मंजर बयान किया गया है कि कैसे लोग कामकाज छोड़कर रेडियो के गिर्द जमा हो जाते थे जब ये ऐलान होता कि नूरजहां का नया नगमा आने वाला है। ये सिर्फ तफरीह नहीं थी, ये एक कौमी इवेंट बन गया था। इनके गाने सिर्फ रिकॉर्डेड गाने नहीं थे, बल्कि एक लाइव परफॉर्मेंस का एहसास देते थे। ऐसा लगता था कि वो जंग के ताज़े तरीन वाक़यात पर फौरी रद्द-ए-अमल दे रही हैं। वो स्टूडियो जाती, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर लिखा गया नगमा लेती और फौरन उसे गाकर नशर करवा देती। उनकी आवाज़ में जो दर्द, जोश और अपनायत थी, उसने जंग की हिमायत में किलीदी किरदार अदा किया। क्या इस मुहिम में सिर्फ गानों का ही जोर था या कुछ और भी था? नहीं, रेडियो ड्रामे भी बहुत अहम थे। किताब 2 ड्रामों का खास तौर पर जिक्र करती है। एक था मौलवी जी। ये एक बहुत ही संजीदा और जज्बाती ड्रामा था जिसमें साउंड इफेक्ट्स का कमाल इस्तेमाल किया गया था। गांव पर भारतीय तैयारों के हमले, बमों के धमाके और लोगों की चीखों पुकार को इस तरह रिकॉर्ड किया गया कि सुनने वाले को लगता कि वो खुद उस हमले के बीच में मौजूद है। और दूसरा ड्रामा निदाए हक बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक मज़ाहिया प्रोपेगेंडा था। उसमें हिंदू किरदारों को बहुत कार्टूनिश और अहमकाना अंदाज में पेश किया जाता और उन पर तंज के जरिए पाकिस्तानियों में समाजी हम-आहंगी और कौमी इत्तेहाद का एहसास पैदा करने की कोशिश की जाती। यानी एक तरफ जज्बात को उभारने के लिए ट्रेजेडी का इस्तेमाल और दूसरी तरफ दुश्मन को कमतर दिखाने के लिए कॉमेडी का सहारा। तो क्या ये मुहिम कामयाब रही? दलील देती है कि तवील मुद्दत में इसके बहुत मनफी नताइज निकले। ये पूरी मुहिम बहुत ज्यादा पंजाब और उर्दू मरकज थी। इसमें जो नारे, गाने और मुहावरे इस्तेमाल हुए वो मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के लोगों के लिए अजनबी थे। इस मुहिम ने नादानिस्ता तौर पर यह तासुर दिया कि ये जंग सिर्फ मगरबी पाकिस्तान की है और यूं मशरकी पाकिस्तान में पहले से मौजूद बेगानगी के एहसास को मजीद गहरा किया। किताब के मुताबिक 1965 की इस रेडियोई जंग ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने की एक बुनियाद भी रखी। तो इस शदीद रेडियाई जंग के बाद क्या दोनों मुल्कों के दरमियान लहरों पर खामोशी छा गई? नहीं, बल्कि एक नया और गैर मुतवक्का बाब शुरू हुआ। जंग के फौरन बाद रेडियो पाकिस्तान की कामयाब मुहिम के जवाब में ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी उर्दू सर्विस शुरू की। बज़ाहिर इसका हदफ पाकिस्तानी सामीन थे, लेकिन ये सर्विस शुमाली हिंदुस्तान में भी बेहद मकबूल हुई। इस सर्विस में ऐसा क्या खास था कि वो इतनी मकबूल हुई? वो रेडियो पाकिस्तान का मुकाबला कैसे कर रही थी? उसकी सबसे मुनफरिद और ताकतवर चीज थे सामाइन के खुतूत। ये सिर्फ एक फरमाइशी प्रोग्राम नहीं था जहां लोग गानों की फरमाइश करते। ब्रॉडकास्टर इन खुतूत को बड़े ड्रामाई और जज्बाती अंदाज में पढ़ते थे और इन खुतूत में लोग तकसीम से पहले की यादें, लाहौर और अमृतसर की गलियों, अपने पुराने घरों और बिछड़े हुए दोस्तों का जिक्र करते थे। यानी ये सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं था, बल्कि सरहद के दोनों तरफ बिखरे हुए लोगों के दुखों और यादों का एक आईना बन गया था। बिल्कुल। खास तौर पे आवाज दे कहाँ है नामी प्रोग्राम एक ऐसा फोरम बन गया जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग फिल्मी गानों के पर्दे में अपने मुश्तरका माजी, मुश्तरका सकाफत और मुश्तरका दुखों को याद करते थे। ये खुतूत सरहद पार राब्ते का एक बहुत ही नायाब और अहम जरिया बन गए। लोग एक दूसरे के खुतूत सुनते, उनका जवाब देते और यूं एक अनदेखी कम्युनिटी वजूद में आ गई जो सिर्फ आवाज की लहरों पर कायम थी। ये सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या ये सब सिर्फ पुरानी यादों और जज्बातियत तक ही महदूद था? किताब का तनकीदी नुक्ता क्या है? जी, किताब यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता उठाती है। वो कहती है कि ये प्रोग्राम माजी की यादों और जज्बातियत पर मबनी था। इसने सरहद पार जज्बाती ताल्लुकात तो बनाए, लोगों को एक दूसरे का दुख दर्द सुनने का मौका भी दिया, लेकिन ये जज्बात कभी किसी ठोस समाजी या सियासी अमल में तब्दील ना हो सके। और इसका एक और नतीजा ये निकला कि इसने हिंदुस्तान में उर्दू जबान को माजी की जबान के तौर पर पेश किया। एक ऐसी जबान जो गुजरे हुए दिनों, पुरानी हवेलियों और बिछड़े रिश्तों से वाबस्ता है, ना कि मुस्तकबिल से। इस सारी गुफ्तगू से ये वाज़ेह होता है कि रेडियो महज एक टेक्नोलॉजी नहीं थी,
बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें बरसगीर का मुआशरा अपनी शनाख्तें बनते और बिगड़ते देख रहा था। यहाँ हुकूमतें अपनी ताकत का इजहार करती थीं और यहीं आम लोग सरहदों के पार एक दूसरे से जुड़ने के रास्ते भी निकाल लेते थे। बिल्कुल, ये किताब हमें यही दिखाती है कि किस तरह रेडियो की लहरों ने सियासी सरहदों को बार बार चैलेंज किया और मुश्तरका सकाफती जगहें तख्लीक की हैं। इसने लोगों को जोड़ा, हुकूमतों के बयानिए को तोड़ा और एक ऐसी दुनिया का तस्वर जिंदा रखा जो नक्शों पर तो तकसीम हो चुकी थी, लेकिन आवाज़ों में अब भी कहीं न कहीं इकट्ठी थी। इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है जो हमारे आज के दौर से मुताल्लिक है। आज के डिजिटल दौर में जहां पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें हमारी ही पसंद के छोटे छोटे दायरों में कैद कर देते हैं, क्या आवाज़ में अब भी वो ताकत है कि वो सरहदों को उबूर करे और लोगों को इस तरह जोड़े जिस तरह निस्फ सदी पहले रेडियो ने किया था? या फिर आज की टेक्नोलॉजी उन्हीं सरहदों को मजीद मजबूत करने का काम कर रही है जिन्हें रेडियो की लहरों ने कभी पिघलाने की कोशिश की थी?